हेलो। हम्म सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग एसक्यूएल जो माई एसक्यूएल में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमांड्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं, वी विल डिस्कस दोस। So let me start with first creating the user. We have already seen that in the initial class that how you can create a user. Okay, let me share the slides as well. I am not seeing. Okay, so I believe that my slides are visible to you. Are you able to see the slide? Okay, good. Okay, so you know that how to log into the MySQL. Let me repeat again. Whenever you want to log in MySQL using command prompt, you just need to write MySQL. Then minus is the symbol. Then space दे करके आपको U लिखना है. So U is for that you are uh, going to log in as a particular user name. So the username you need to provide. Here I have written root because I was having a user root. So if you are having some any other user, you will log in that name and minus p, and you provide your password. You can also give password after following p, but we generally do not want to give the password in this way because your password will be visible on the screen. So that's why it is always a good idea to that just use this part of the command. Okay, so let me show you the same for you. My however, we have done already this many times, but so this is now asking the password. So now I am able to log in. I think I should increase the font size. Okay, so now let's change to our database. So we are using this database. Okay, now whenever you want to create a user, or obviously first if you are an administrator, you will require to create a number of users, and you need to assign a set of privileges on your database to those users. So first you need to use to create a user. In order to create a user, you need to use create table command. Okay, or sorry, create user command. So you will write like that, create user. Here the name of the user you will provide, so that whatever username you want to assign to that user, you will choose that. So here I am using Ravi as the username. Then at symbol, this part is optional actually. So if you are doing everything on the local machine, your user is going to be created on local machine, your database is also at local machine, then you can either specify it or you can also drop it. It is not required. You can just write create user Ravi identified by, and whatever password you want to assign to Ravi, you can give this password to that Ravi. So you have to provide this value in a single quote. Okay, and once you have created this user, so this user may not be having any kind of privilege, so you need to assign some privilege to that user, so that this user will be able to do something with your database. Okay, so this command gives all the privilege to the users, to this particular user Ravi. So how you are doing that, grant all privileges. So this is indicating that you want to give all the privilege to this user. So that means actually we are interested in giving administrative level privilege to this user Ravi. Okay, so if you do not want to give administrative level privileges, we will see that how we will do that. Okay, so for the time being, if you want to create a user with administrative kind of privileges, like you are a database administrator, so you are creating a user that will be able to do stuff with your database in your absence. ठीक है, जब आप नहीं है तब आप alternate person के तौर पर किसी को responsibility देना चाहते हैं, then you can assign this kind of privilege. So this command will give all the privileges to user Ravi on star dot star. So star dot star means you are giving privileges on each and every database to Ravi. Otherwise you can specify the name of the database. ठीक है, on rather than using star dot star, you can specify the
पर्टिकुलर डेटाबेस नेम जिस पर आपको प्रिविलेज देनी है, लाइक university_db. So I have having a database university_db, so you can use that database name. And 2, then user name जिसको आपको प्रिविलेज प्रोवाइड करनी है. So here Ravi is that user, and now I want to assign these privileges to Ravi such that Ravi will also be able to give these privileges to other users as well. Okay, so if you do not specify this part, that's also fine, but now Ravi will not be able to assign its whatever privilege he is having to other users. Okay, so अगर वो कुछ और यूजर्स क्रिएट करता है तो वो उनको वो प्रिविलेज जो रवि के पास है वो उनको नहीं दे पाएगा. सो अगर आप चाहते हैं कि रवि जो है ना किसी दूसरे यूज़र को भी प्रिविलेज दे सके, ये कैपेबिलिटी आप चाहते हैं, तो यू कैन यूज विद ग्रांट ऑप्शन. Okay, so we have already discussed all these things. I am just repeating that for you. And finally, you need to change, you need to make all the changes permanent. So in order to do that, you just need to issue this command flush privileges. So now the user Ravi will get all the privileges on all the databases. अगर आपने start किया है और एक database का नाम दिया तो उस database पर सारी privilege मिल जाएंगे. So this is how the user will be created and the privilege will be given. Okay, now sometimes you may like that you want to update the password of a user, so you can do this using this command, update user set password. So these are the keywords actually, and equals to, then in the password function you need to provide, so this is the password, you need to edit it, and then within that bracket you need to assign the new password. So for example, suppose I just want to give some new password to user Ravi, so I can run this command, update user set password equal to password ब्रैकेट में जो भी नया पासवर्ड आप असाइन करना चाहते हैं, दैट पासवर्ड विल बी देयर वेयर यूजर इक्वल टू रवि. Okay, so this password will be assigned and Ravi will be able to log in using this password. Okay, so this is how you can modify password of a user. Okay, now you just need to make it effect. You need to issue this command flush privileges. Okay, now suppose that you just want to know what are the privileges user Ravi have. So you just issue this command, show grants for Ravi. So let me show you this command, show grants for Ravi. Okay, so you will see that these are the some list of steps you are getting. Let grant, select, insert, update. So it is actually showing that Ravi is having all the privileges because we have given initially I created this account, so I have given all the privilege, actually administrative privilege to the user. So all these privileges I have been listed there, and if suppose user is given in some set of privilege only, then those privileges will be seen using this command. Okay, so you can see the privileges assigned to a user using this command. You just need to write show grants, and for it is, these are the keywords actually, and just then whatever user जिसके लिए आपको privilege पता करनी है कि what kind of privilege that user is having, you can give the name of that user. Okay, let me come back again. So show command, if you want to see the database, you need to issue show databases so that you will be able to show the database. Create database we have already used. अगर आपको कोई database create करना है, you just need to issue the create database command and you need to give the database a particular name. And so all these commands you are familiar with, so let me skip them. Now sometimes you may be interested in knowing that how many users you are having, or what are the attributes that particular users are having. So you can extract this information from a table that is referred as user in MySQL database. Okay, so actually MySQL database actually maintains information about the users that are that have been created to log in that database is stored in user table.
So you can access this table with the help of this word. So you just need to write mysql.user. So mysql is the name of the database and then user is the name of the table. Okay, so you just need to issue select star from mysql.user. So let me copy this command and run this so that you will be able to see what you can see. Okay, select star from, why it is select star. ठीक है, वो कॉपी से रिलेटेड कुछ इशू था. So this is the actually complete information. So since this information is not well organized, you can transfer this information into some file using pipeline operators. Okay, so then you will be able to better see, or you can just copy this from there and you will be able to see all the information. Okay, so here you can see that these are the actually columns: host, user, select underscore privilege, कौन सी select privilege है, insert privilege कौन सी है, all that. So all these information is maintained in these set of tables. So actually this is the complete table. You generally do not require to see the complete table. You just need to see certain information. So for example, suppose you just want to know the information of user and host, so you can specify some attributes rather than specifying all the attributes. Okay, so let me select some user, some steps there rather than writing a star. So host and user हम लोग देख लेते हैं. Host comma user. Okay, so these are the host. Actually these are the, this represent actually local host, and these are the users that have been available with this database. App developer, this is actually a role actually that I have created, but role appears like a user, so that's why it is there. Okay, we will see that how we can create a role. So this is the user that मैंने इसी user name से login किया है. This is another user that I am having, and these are the users that are available with system. Automatically ये system के साथ आते हैं. आप installation के time पर इन्हें activate deactivate कर सकते हैं. And this is the root user जो कि Linux में automatically create होता है. Okay. So you can see the information about the users in this way, and there are lot of columns are available, so you can check those columns by just saying, mentioning there what you want to have. So like password reuse history, you can see when user have changed the password, so you can see this information also. Account is logged or not, you can check this information using this. So let me use this part also. Okay, so the account is logged or yes, logged or not, you can see this information. So this user's account is logged, okay, but these are not logged. Okay, so you can see the information. So actually whatever information you want to get from get about the user, you can choose these columns. So these are the list of the columns. So you can see huge a large list of is there. Password required, user attributes, and password reuse time, password reuse history, password expired or not, or all these. So a lot of information is there. You can whenever you require, you can issue this kind of command. Okay, so it is actually a normal table. जिस तरीके से आप normal table को query करते हैं, you can also query this table as well. Okay, let me issue this command as well, so that authentication string आप इसमें देखना चाहते हैं तो user का actually password आप देख सकते हैं इसमें, but the password will not be available in the normal text. This is a hash value of the password, so you can also see whether password is set for that user and or not. So since you are able to do this because you are having administrative level privileges. Okay, so if you are not having administrative level privilege, you may not be able to access this table.
Okay, so this is actually system table. You can see the syntax, what columns this table is having using this command. So since I have told you that this is a normal table, this is a table, so you can do whatever you can do with other tables. So you will get the list of the columns and their data types. Okay, like what are the columns are available with this tables. So 51 columns are there. This table have 51 columns, so you can go for select whatever in column you want to extract. So this is a very useful table, so I thought you should know about this table. So let me move ahead. Okay. So describe, किल और इसकी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि आपको डेटा कैसे इंपोर्ट करना है. दिस इज डुप्लीकेटेड पेजेस. Now let's talk about the access control. So actually this is very important. Whenever you will work as an administrator in an organization to maintain their database, you need to regulate the access of your database. So that process is known as access control in raw terms. Simple term है access, it is called access control. So access control का simple मतलब यही है कि आप regulate कर पाएँ कि कौन क्या access कर पाए अपने database में. What user is allowed to do what on your database. So to control this or to enable the users to do only certain kind of stuff, you have to assign authorization to them. So this process is called actually authorization. Technically it is called authorization. So authorization means to give certain permissions or power to a user to do something with your database. Okay, so this is called authorization. In order to do access control, first you have to do certain authorization, and that authorization information will be saved by the database, and whenever user will issue certain commands, those commands will be evaluated against the authorizations given to a particular user. ठीक है, जिसने वो कमांड इशू की है. So if that command is as per the information permit or information specified in the authorization, the user command will be allowed or disallowed. ठीक है, or maybe cancelled. Okay. So MySQL में जो access control है, it is done in 2 stages. You can see here. Stage 1, in the stage 1, server accepts or rejects the connection based on your authentication result. So first you need to be authenticated. Whenever you are logged into your databases, you need to be authenticated. Okay, so authentication means you need to establish your identity, and और आपको claim what you need to establish that you are the one you are claiming to be. जो आप अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं या जो आप अपने आप को बता रहे हैं वो वही आप वही है ना. सो दिस नीड टू बी established by the database. Only then you will be allowed to connect with the database. Okay, so how this is done? This is done using username and password. So whenever you are creating a user, you need to or you are permitting a user so that he or she will be able to work with your database, you need to assign a username and password to that person. ठीक है, सो ये आपकी फर्स्ट स्टेप है. आपने यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, एंड देन ही और सी विल बी एबल टू कनेक्ट विद योर डेटाबेस बाय यूजिंग हिज और हर यूजर नेम एंड पासवर्ड. सो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने वी हैव लोकल मशीन. सो आपने लोकल मशीन में ही अपने MySQL यूजर नेम पासवर्ड ऑफर किया. मैंने लॉगिन करके इसी तरीके से लॉगिन किया. सो इफ़ यू आर डूइंग द सेम ऑन रिमोट मशीन, सो आपको यूजर नेम के साथ में आपको रिमोट मशीन का IP एड्रेस भी देना होगा जिससे आपको कनेक्ट करना है. So you can do that. You can see the corresponding command syntax for connecting with a particular database. ठीक है,
सो आपने वो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए मशीन का होस्ट नेम या आईपी एड्रेस आप प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैंने वहाँ लिखा था ना एट लोकल होस्ट। सो इसी तरीके से आपको रवि एट आईपी एड्रेस जिस मशीन पर है उस यूज़र का मशीन का नाम या आपको या तो होस्ट नेम देना पड़ेगा या आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। एंड देन यूज़र नेम और पासवर्ड पास करना पड़ेगा। सो यूजिंग दैट यूज़र नेम पासवर्ड द सर्वर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई और ऑथेंटिकेट यू। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एंड देन नेक्स्ट, वंस ऑथेंटिकेशन इज डन, ठीक है, यू आर कनेक्टेड विद द डेटाबेस एंड नाउ यू विल बी एबल टू इशू द कमांड्स। ठीक है, जैसे आपने लोकल डेटाबेस में देखा है कि अभी मैंने लॉगिन किया अपने यूज़र से, सो जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल हो गया देन आई एम एबल टू इशू द कमांड। अगर मैं लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होता तो मैं कमांड डेटाबेस को इशू नहीं कर पाता। सो वंस लॉगिन इज डन, स्टेज 1 इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, you can enter into the stage 2, and in stage 2 you can issue the commands. And in stage 2 now what will be checked? Whenever you will issue a command, your command will be checked against your authorization कि आपको क्या permission दी गई है। So if you are issuing certain command, so database will check whether you have power to issue this command or not। ठीक है, सो पावर टू इशू कमांड का मतलब है कि लेट्स से आपने इंस्ट्रक्टर टेबल पर एक अपडेट क्वेरी इशू की, लेट्स से सैलरी कॉलम पर। सो डेटाबेस विल चेक कि वेदर यू आर एंटाइटल्ड टू अपडेट द सैलरी कॉलम ऑफ इंस्ट्रक्टर टेबल और नॉट। अगर आपका एंटाइटलमेंट है, आपको ऑथराइजेशन दिया गया है, देन डेटाबेस विल चेक दैट ऑथराइजेशन फ्रॉम द सिस्टम टेबल्स एंड देन इफ इट फाइंड इट दैट इट इज करेक्ट, देन इट विल अलाउ योर कमांड टू एग्जीक्यूट, or it finds that no, your data the command you are issuing is not as per your authorization, so your command will be discarded with some error message। okay, so this is how a database does access control। ठीक है, सो ये जो एक्सेस कंट्रोल है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 2 टास्क करना पड़ेंगे। पहला, यूजर्स को क्रिएट करना पड़ेगा, सो दैट मीन्स यूजर को यूजर नेम और पासवर्ड असाइन करके क्रिएट करना पड़ेगा। एंड देन उनको आपको स्टेज 2 में वर्क कराने के लिए, स्टेज 2 को इंश्योर करने के लिए यू नीड टू असाइन द प्रिविलेजेस टू देम। सो यूजर को प्रिविलेज असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रांट कमांड से उसे प्रिविलेजेस असाइन करेंगे। ठीक है, सो वी हैव सीन वन ग्रांट कमांड यूज जिसमें हमने एक यूज़र रवि को सारी प्रिविलेज दी हुई थी, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड और इट इज़ एक्चुअली डिजायरेबल कि आप पर्टिकुलर यूज़र और एक गिवन सेट ऑफ यूज़र्स को स्पेसिफिक परमिशंस ही अलाउ करें। ओके, सो दोज परमिशंस कैन ऑल्सो बी गिवन यूजिंग ग्रांट कमांड, but we will see that how we can use those permissions or we can give those permissions. So the permissions in the MySQL database can be classified into some categories. So first kind of is category is administrative privileges. So ये जो privileges हैं, these are the global privileges. So when you give a administrative level privilege to a user, it will work globally. That means it will be applicable on all the tables or all the databases। ठीक है, so actually all the databases पे applicable हो गई है। ठीक है, so अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज दिए तो जो कि अभी आपको याद है, आई हैव गिवन ऑन स्टार डॉट स्टार, सो दैट वाज एक्चुअली काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल प्रिविलेज जिसमें मैंने सारे डेटाबेसेस पर वो प्रिविलेज असाइन की थी। लेकिन you also have a option that you can give a privilege to a specific database as well। so जहाँ पे मैंने बताया था स्टार डॉट स्टार जो ऑप्शन था वहाँ पर आप डेटाबेस का नाम लिख दीजिए। so that privilege will be now a database level privilege, so that these kind of privilege actually becomes applicable on only on a database। ठीक है, not all databases। then third is kind of privilege that is called privilege on objects of databases। so these privileges are given on tables or indexes or views or stored routines। ठीक है, so ये जो privilege आपने दी है वो पूरे डेटाबेस पर अप्लाई नहीं होंगे, या तो वो किसी टेबल पर अप्लाई होंगे या कि टेबल में या किसी अदर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल होंगे। so these are the 3 classifications जिन्हें आप अपने जो यूजर्स को जो privilege दिए हैं उनको इन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ जो यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन जो प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन जो आप असाइन करते हैं वो
दीज आर सर्टेन सिस्टम टेबल्स जिसमें ये प्रिविलेजेस स्टोर होती हैं. यूजर टेबल, डीवी टेबल इज ऑल्सो देयर, टेबल प्रिविलेज. सो दीज आर द एक्चुअली नेम ऑफ द टेबल्स जिनमें ये प्रिविलेजेस स्टोर की जाती हैं डेटाबेस के द्वारा. सो MySQL यूजेस दीज टेबल्स टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन. Okay, now what MySQL does, so whenever MySQL server जो स्टार्ट होता है, सो इट एक्चुअली रीड्स द प्रिविलेज, और यूजर लॉग इन करता है किसी टाइम पर, तो इट रीड्स प्रिविलेज अबाउट दैट यूजर फ्रॉम दैट टेबल्स. ठीक है, एंड इनको रीलोड भी करता है वेन एवर प्रिविलेजेस में कोई चेंज होता है. ठीक है, सो ये जो ना मतलब आपके डेटाबेस में इमीडिएट पहले से डेटाबेस जो ना प्रिविलेजेस की जो लोड करके रखता है कि जैसे आपने एक लॉगिन किया तो ऑल प्रिविलेजेस ऑफ योर सेल्फ हैज बीन लोडेड बाय योर डेटाबेस इन मेमोरी समवेयर. ठीक है, मेन मेमोरी में, सो दैट आपकी कमांड्स को इमीडिएटली या फास्ट तरीके से चेक किया जा सके कि आपको वो पर्टिकुलर प्रिविलेज है या नहीं है व्हेन एवर यू आर रीसिंग ए कमांड. Okay, now one more point you should remember, whenever a user creates a table in a database, it gets all the privilege on that table. So this is actually a statement, or that actually confirms the ownership actually. So whatever object you create, you will automatically get all the privilege on that user, that thing. So for example, suppose you create a database. So since you are the creator of a database, so you will get all the privilege on that database. उस database में जो भी objects होंगे, उस database का part होंगे, उन सब पर आपको सारी privileges मिल जाएंगे. And suppose आपने database नहीं बनाया है, but you have created only one table. So आपने एक table बनाई है तो उस पर आपको सारी privilege मिल जाएंगे. ठीक है, अगर आपने नहीं बनाई है then it is not necessary. So it is actually the fact that a owner gets all the privilege on the object that he or she have created. Now it is also important to remember that you can only create particular type of objects when you are having a privilege to create that object. ध्यान रखना, अगर आपको डेटाबेस में डेटाबेस क्रिएट करने की प्रिविलेज है तभी आप डेटाबेस क्रिएट कर पाएंगे, ये याद रखना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको डेटाबेस क्रिएट करने की प्रिविलेज नहीं है, आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया. So in any database actually, in relational databases, you need to have privilege to do every task. ठीक है, बिना प्रिविलेज के आप कोई काम नहीं कर सकते. तो अगर आपके पास कोई किसी पर्टिकुलर टास्क को करने की प्रिविलेज नहीं है, then you will not be able to do that. Okay, so you should remember this. Now let's talk about what kind of privileges, or we can also call that form of authorization that we given on the database or their objects to a user. Okay, so these are the some of the privileges. Actually there is a huge list of privileges that you can do, but these are the common privileges that you can do. Read, so this privilege is called a read privilege. So read privilege allow you to read a particular data. ठीक है, सो अगर आपको मान लीजिए इंस्ट्रक्टर टेबल पर रीड प्रिविलेज मिलती है, देन यू कैन रीड द डेटा फ्रॉम दैट टेबल. ठीक है, सो रीड प्रिविलेज कैसे मिलती है, उसके लिए क्या कीवर्ड है, वी विल सी. सो सेलेक्ट एक्चुअली कीवर्ड यूज करना पड़ता है आपको. सिमिलरली इफ यू हैव प्रिविलेज टू इंसर्ट, यू कैन इंसर्ट द डेटा इनटू द टेबल. नाउ याद रखना है कि अगर आपको किसी टेबल में डेटा इंसर्ट करने की प्रिविलेज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस टेबल में कॉलम अपडेट करने का पावर मिल जाएगा. ठीक है, अपडेट, अगर आपको अपडेट करने की प्रिविलेज है तो नेसेसरी नहीं आपको डिलीट करने की प्रिविलेज मिले. सो अपडेट प्रिविलेज अगर है, दैट मीन्स यू कैन अपडेट द डेटाबेस. ओके, सो अपडेट डेटाबेस मतलब एक पर्टिकुलर डेटाबेस में एक टेबल पर अगर आपको अपडेट की परमिशन है तो आप टेबल को अपडेट कर सकते हो. डेटाबेस पर अपडेट की प्रिविलेज है, यू कैन अपडेट द डेटाबेस. डिलीशन के लिए भी प्रिविलेज आपको असाइन करना होती है. सो डिलीशन के लिए प्रिविलेज अगर आप किसी यूजर को दे देते हैं, देन ही और सी विल बी एबल टू डिलीट द रिकॉर्ड्स. ओके, सो ये ध्यान रखना है, डिलीशन का प्रिविलेज दे दी इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेटाबेस से सिलेक्शन कर सकते हैं, डेटाबेस से डेटा रीड कर सकते हैं. सो दीज प्रिविलेजेस आर एक्सक्लूसिव. ऐसा नहीं कि एक प्रिविलेज दे दी तो दूसरी ऑटोमेटिक आ जाएगी. ओके, देन फॉर्म्स ऑफ ऑथराइजेशन टू मॉडिफाई द डेटाबेस स्कीम.
सो डेटाबेस को स्कीमा को मॉडिफाई करने के लिए भी आपको पास कुछ प्रिविलेज है, लाइक इंडेक्स क्रिएशन कर लिए यू कैन गेट द प्रिविलेज। डेटाबेस में अगर आपको इंडेक्स क्रिएट करना है सो दैट यू कैन सर्च डेटा फ्रॉम द डेटाबेस इन ए फास्ट मैनर, या एक पर्टिकुलर टेबल से आपको डेटा को फास्ट तरीके से रिट्रीव करना है, सो यू कैन यूज इंडेक्सिंग। सो यू कैन बी गिवन प्रिविलेज टू क्रिएट इंडेक्स। रिसोर्स क्रिएशन की प्रिविलेज आपको दी जा सकती है, अल्ट्रेशन की प्रिविलेज दे सकती है, ड्रॉप करने की मतलब डिलीट करने की प्रिविलेज दी जा सकती है। सो दीज आर द प्रिविलेजेस दैट यू कैन बी असाइंड टू on databases. So let's see how the privileges are given. So I think you are familiar with this command. So but still let me tell you the syntax. So in order to give the authorization you need to use grant command or grant statement. Okay. So in any user if you want to give any privilege you need to use grant command. So grant command have following syntax. Grant, this is the keyword, then स्पेस दे करके आपको you need to provide the list of privileges. Okay, so whatever privilege you want to give to a user you need to list them one by one, एक एक करके। जैसे आपको रीड करने की प्रिविलेज देना है तो you need to write select, इंसर्ट की प्रिविलेज देना है you need to write insert, डिलीट की प्रिविलेज देना है you need to write delete, और you need to give the permission of updating, then you need to write update. ठीक है, then so this is the list of privilege you will provide. Then on, this is the keyword. ठीक है, so आपने privilege बता दी, अब on से आप बताएंगे on clause में कि किन objects पर या किन resources पर आपको privilege assign करनी है particular. So you will specify the name of the relation or tables, relation or views. So view पर भी privilege आप दे सकते हैं. So you need to provide the list or list of the relations जिन पर आपको privilege assign करनी है. एंड डेटाबेस भी आप नाम दे सकते हैं. ठीक है, 2 कीवर्ड है. इसके बाद किन किन यूजर को प्रिविलेज देनी है. सो एक तो है कि सिंगल यूजर को प्रिविलेज देना है तो आप एक यूजर का नाम मेंशन करेंगे, और यू कैन गिव ए लिस्ट ऑफ द यूजर ऑल्सो. ओके, जैसे मैंने बताया यूजर को आपको नाम पता करना हो यू कैन यूज दिस कमांड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. सो अगर आपको सिस्टम में यूजर के किसी यूजर को प्रिविलेज देना है बट यू डू नॉट नो द करेक्ट व्हाट आर द यूजर नेम्स अवेलेबल, you can select from that table. Okay, now यूजर लिस्ट में आपको यूजर आईडीज या यूजर नेम प्रोवाइड करने हैं, प्रिविलेज लिस्ट में प्रिविलेज असाइन करनी है. नाउ समटाइम्स क्या होता है कि आप अगर एक यूजर को सारी प्रिविलेज देना चाहते हैं, या ये जो ऑटोमेटिकली कुछ प्रिविलेजेस असाइन होती हैं वो देना चाहते हैं आप, तो पब्लिक कीवर्ड मेंशन कर सकते हैं. सो जो भी वैलिड प्रिविलेज है तो वो पब्लिक प्रिविलेजर जो सबको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं कई यूजर्स को क्रिएट करने पर, वो पब्लिक प्रिविलेजेस में जो है आप उस यूज़र को असाइन कर सकते हैं. ओके, एंड आप इसमें लिस्ट में यूज़र के नाम के साथ रोल को भी मिक्स कर सकते हैं. सो वी विल टॉक अबाउट रोल ऑल्सो. So role is a kind of mechanism that allows user to assign a bunch of or set of privileges in a one go. Okay, so role behaves like a user. So this is the example. So suppose you want to create a user. So you have a username with let's say user is Rakesh, or you can use Ravi also. So आप उसे सारी privilege देना चाहते हैं. Grant all privilege on start or star to रवि और राकेश एट लोकल होस्ट विद ग्रांट ऑप्शन. यू हैव सीन दिस कमांड. तो इससे क्या होता है कि सारी प्रिविलेज उस पर्टिकुलर यूजर को मिल जाएंगे. ओके, नाउ वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर द फैक्ट दैट अगर आप किसी यूजर को एक व्यू के ऊपर प्रिविलेज दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंडरलाइन जो टेबल्स हैं जिनसे व्यू बनाए उन पर प्रिविलेज मिल जाए. सो फॉर एग्जाम्पल एक व्यू आपने लेट्स से फैकल्टी इन्फो क्रिएट किया हुआ है इंस्ट्रक्टर टेबल से. So if you are given a privilege on faculty info, then it doesn't mean that you have given the same user the privilege on instructor table also. नहीं, instructor table पर वो privilege नहीं मिलेगी. User can only work on that view as only. ठीक है, so ये आपको याद रखना है. Privilege is not propagated on the underlying table. This is very important. Now एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो ग्रांटर ऑफ द प्रिविलेज है उसके पास प्रिविलेज असाइन करने की
पहले तो पावर होना चाहिए और दूसरा वो प्रिविलेज उसके पास होना भी चाहिए. ओके, so suppose that I am a user that is having privilege on instructor table of doing deletion on that instructor table. मैं इंस्ट्रक्टर टेबल पर डिलीशन कर सकता हूँ, वो मेरे पास प्रिविलेज है. तो मैं ये प्रिविलेज किसी अदर यूज़र को तभी दे सकता हूँ जब मेरे पास ग्रांट ऑप्शन के साथ परमिशन है उस प्रिविलेज के अगेंस्ट में. दैट मीन्स मेरे पास परमिशन है कि मैं ये प्रिविलेज किसी और को भी दे पाऊँ. सो दैट मीन्स अगर वो मुझे प्रिविलेज ग्रांट ऑप्शन के साथ मिली है, देन आई विल गिव दैट प्रिविलेज टू एनी अदर यूज़र. अगर मुझे ग्रांट ऑप्शन के साथ नहीं मिली है तो नहीं दे सकता. और ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास कुछ प्रिविलेज ग्रांट ऑप्शन के साथ मिली हैं और एक ऐसी प्रिविलेज है जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास है ही नहीं है, लेट्स से इंस्ट्रक्टर टेबल में मुझे अपडेट की परमिशन मिली ही नहीं है, बाकी परमिशन जो मिली है वो ग्रांट ऑप्शन के साथ हैं, बट आई डू नॉट हैव एनी प्रिविलेज ऑफ अपडेटिंग एनी कॉलम ऑन लेट्स से इंस्ट्रक्टर टेबल, देन आई कैन नॉट ट्रांसफर ए प्रिविलेज दैट आई डू नॉट हैव. ठीक है, ये याद रखना है. मैं केवल वही प्रिविलेज किसी और यूज़र को दे सकता हूँ जो मेरे पास है, फर्स्ट थिंग. एंड देन और वो ट्रांसफ़र तभी पॉसिबल होगा जब मेरे पास वो प्रिविलेज मुझे ग्रांट ऑप्शन के साथ दी गई है. दैट मीन्स आई हैव बीन अलाउड टू इशू दोज प्रिविलेज टू अदर्स. ओके, नाउ let me talk about the privileges. So these are the privileges that you can use for particular part. So create privilege जो है ना आपको मिल जाती है अगर, तो आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं. क्रिएट यूजर, क्रिएट व्यू, ड्रॉप. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द सम प्रिविलेजेस. ऑल का मतलब है सारी प्रिविलेज आपको मिल जाएंगे. डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, ठीक है, ग्रांट ऑप्शन. सो ऑल दीज आर द प्रिविलेजेस that are available that you can assign to other users. ठीक है, then create user, create temporary tables, create table space, create routine, drop, event, execute, file, grant option, index. All these are the list of privileges that you can give to other users. ठीक है, so I will request you to go through with these privileges. Okay, now let's have an example. So suppose you are having a user, I am having a user named Ravi, and I want to give user Ravi a privilege to do let's say insertion on instructor table. ठीक है, so what I will do, I will write ग्रांट. ठीक है, लेट मी चेक द सिंटैक्स. लिस्ट ऑफ प्रिविलेज. सो लेट्स से आई जस्ट वांट टू गिव द इंसर्ट कॉमा डिलीट. ठीक है, so these are the privilege on university underscore db dot table name instructor. ठीक है, so I am just mentioning that I just want to give the privilege on instructor table. कौन कौन सी privilege देना चाहता हूँ? insert and delete. okay, किसको देना है? टू रवि. विद ग्रांट ऑप्शन देना है या नहीं देना है? तो अगर आपको विद ग्रांट ऑप्शन नहीं देना तो यू विल जस्ट स्टॉप हियर और यू विल राइट विद ग्रांट ऑप्शन. ठीक है, सो द प्रिविलेज हैज़ बीन गिवन. हालांकि अगर आपने ये प्रिविलेज नहीं दी होती यूज़र को, हालांकि आई कैन नॉट शो यू दैट रवि ये काम कर पाएगा कि नहीं. सो यू कैन क्रिएट ए यूज़र जिसको आप कोई भी प्रिविलेज नहीं दीजिए, एंड आई विल सजेस्ट यू टू डू एक्सरसाइज दैट जस्ट क्रिएट वन यूज़र. उसे आप कोई भी प्रिविलेज नहीं दीजिए और फिर आप या एंड देन ट्राई टू fetch the data from instructor table. You will not be able to do that because you have not any permission. Okay,
So I will just create some exercise for you so that you will be able to work with that. You just need to understand the syntax of those commands. So you can list here, एक privilege देना है, दो privilege देना है, पूरी list देना है. So you can give a long list of that. मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पर देना है स्पेस दे करके, यानी वो ऑब्जेक्ट्स के भी नाम लिख सकते हैं जिन जिन पर देना है. ओके. सिमिलरली अगर एक और चीज़ है, अपडेट अगर आपको प्रिविलेज देना है तो अपडेट में आपको कॉलम का नाम लिखना पड़ता है. ठीक है, ब्रैकेट में अपडेट. सो लेट्स से आप दे सकते हैं कि लेट्स से आप केवल सैलरी अपडेट करने की परमिशन इसको पर्सन को दे रहे हैं. ठीक है, डिपार्टमेंट नेम अपडेट नहीं कर सकते, नेम अपडेट नहीं कर सकते, ऑल दैट. तो जिन जिन कॉलम्स पर आपको अपडेट प्रिविलेज देना है, ब्रैकेट में आपको उनकी लिस्ट देना पड़ेगी. ठीक है. अगर आपको सिंपली अपडेट लिख देना है, दैट देन सिस्टम विल ऑटोमेटिकली एज्यूम कि आप सारे कॉलम्स पर अपडेट की परमिशन देना चाहते हैं. अगर आप किसी स्पेसिफिक फिक्स सेट ऑफ कॉलम्स पर देना चाहते हैं, देन यू कैन लिस्ट दोज कॉलम्स देयर. तो लेट्स से सैलरी पर भी देना है प्रिविलेज, और आपको लेट्स से डिपार्टमेंट नेम पर भी प्रिविलेज असाइन करना है कि डिपार्टमेंट नेम भी अपडेट कर सके ये पर्टिकुलर यूजर पर भी. So you can give that privilege to that user also. Okay. So this is the way you can give privilege to a user. अच्छा, एक और डेटा सेलेक्ट करने की प्रिविलेज के लिए आई थिंक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द करेक्ट कीवर्ड, सेलेक्ट शायद लिखना होता है. ठीक है, सेलेक्ट. सो सेलेक्ट आप लिख देंगे तो इसका मतलब सिलेक्शन की भी प्रिविलेज मिल जाएगी कि यूजर कैन ऑल्सो रिट्रीव द डेटा फ्रॉम दिस टेबल. Okay, so this is how you can assign the privilege. Now obviously when you are able to assign privilege to the users, so you are administrator, so sometimes you may also require to revoke the privilege from those users. That means उनसे privilege वापस भी लेना है. They have done something else, ऐसा they have misused the privilege, so you want to give them punishment by revoking their privileges. Or suppose some person's role has been changed and now particular set of privileges are not required, then you can revoke the privilege from that user also. So this can be done with the help of revoke statement. So revoke statement की syntax ये है, revoke, then जो जो privilege आपको वापस लेनी है उनके नाम लिस्ट कर दीजिए यहाँ पर, सिमिलरली जैसे आपने वहाँ किया था. then on किन किन पर से रिवोक करना है, उनका डेटाबेस पर से, पूरे डेटाबेस पर से वापस लेनी है तो आप डेटाबेस से वापस ले सकते हैं, या फिर किसी टेबल पर या सेट ऑफ टेबल्स पर लेनी है वापस तो आप उनके टेबल्स के यहाँ पर लिस्ट दे देंगे. ठीक है. एंड एक सिंगल यूजर से आपको प्रिविलेज वापस लेनी है या रोल से वापस लेनी है तो उसका नाम लिख देंगे, और मल्टीपल से वापस लेनी है तो वहाँ पे पूरी एक आप लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे. सो एग्जांपल जैसे है रिवोक सेलेक्ट ऑन ब्रांच फ्रॉम U1 U2 U3. सो सपोज दीज आर द 3 यूजर्स जिनसे आपको ये प्रिविलेज वापस लेना थी, और किस टेबल कहाँ पर वापस लेनी है, ब्रांच टेबल पर लेनी है. तो टेबल का नाम लिख दिया. ठीक है. सो आपने करंट जो यूजर सेलेक्टेड डेटाबेस होगा उसके टेबल का नाम लिखना पड़ेगा. ठीक है. जहाँ आप डेटाबेस नाम नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि करेंटली आप जिस डेटाबेस के साथ वर्क कर रहे हैं ये ब्रांच टेबल उस डेटाबेस में है. ठीक है. सो इसको क्लियर है एवरीथिंग, डेटाबेस अलग नहीं है. सो यू विल राइट दैट. ठीक है. सो जैसे इस केस में अब क्या होगा, इस कमांड के रन होने से U1 U2 और U3 जो 3 यूज़र हैं उनसे ये प्रिविलेज वापस ले ली जाएगी. जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं रिवोक लेट्स से अपडेट ना, डिलीट वापस ले लेते हैं, डिलीट ऑन university_db.instructor फ्रॉम होगा 2 की जगह पे ना, लेट मी चेक इट. फ्रॉम, ओके, फ्रॉम रवि. ठीक है. एक ही यूजर है उससे वापस लेनी है तो नाउ द प्रिविलेज विल बी रिवोक्ड फ्रॉम दैट पर्सन. सो नाउ रवि विल नॉट बी एबल टू डू डिलीशन ऑन द इंस्ट्रक्टर टेबल. सो दिस इज हाउ यू कैन रिवोक प्रिविलेज फ्रॉम यूजर्स. Okay, now there are certain issues or certain logical kind of associations or things that you need to remember while revoking the privilege. ठीक है.
नाउ ये जो पब्लिक है, पब्लिक का मतलब है कि ये प्रिविलेज आपको सारे यूजर से वापस लेनी है। ओके, सो पब्लिक, सो सपोज दैट आई जस्ट वांट टू रिट्रीव द लेट्स से डिलीशन प्रिविलेज फ्रॉम ऑल द यूजर्स, तो यू कैन यूज द पब्लिक कीवर्ड। और पब्लिक कीवर्ड, सो पब्लिक रिप्रेजेंट एक्चुअली ऑल यूजर्स, ठीक है। तो आपको कुछ प्रिविलेज सारे यूजर्स को देनी है। so you have decided or you have some policy that minimum these privileges should be given to all users, so you can use public. So public represents all users that have been available with the system. So similarly आपको कुछ सारे यूजर्स से कुछ सेट ऑफ प्रिविलेज वापस लेनी है, तो आप यूजर्स के नाम ना देते हुए सीधा पब्लिक कीवर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। नाउ एक और चीज़ कि अगर एक यूजर को प्रिविलेज जो है दो अलग अलग जगह से मिली हुई है, सो सपोज दैट रवि को मैंने भी प्रिविलेज असाइन कर दिया इंस्ट्रक्टर टेबल पर डिलीशन की, एंड लेट्स से रवि हैव आल्सो रिसीव्ड द डिलीशन प्रिविलेज फ्रॉम लेट्स से सम अदर यूजर, लेट्स से रूट। ओके, सो रवि हैव रिसीव्ड प्रिविलेज फ्रॉम टू डिफरेंट पाथ्स। ओके, नाउ सपोज दैट आई जस्ट टेक बैक द डिलीशन प्रिविलेज दैट आई हैव गिवन टू रवि। ओके, सो मेरी तरफ से प्रिविलेज तो वापस हो गई, लेकिन रवि ऑल्सो हैव रिसीव्ड प्रिविलेज फ्रॉम रूट। सो नाउ रवि विल बी एबल टू डू द डिलीशन, अभी भी कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रिविलेज वहाँ से ऑटोमेटिकली वापस सारे यूजर से मिली हुई प्रिविलेज वापस नहीं होती है। अगर आपको दो बार मिल गई हैं तो इट इज़ पॉसिबल दैट यूजर विल हैव द प्रिविलेज, ठीक है। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि अगर एक यूज़र को आपने दो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से या दो अलग यूजर्स ने उसे प्रिविलेज दे दी है, तो एक जगह से रिवोक करने से उससे दूसरे यूजर हो सकता है दूसरे यूजर से वाला दी हुई प्रिविलेज सेम प्रिविलेज बची हुई रहे, बिकॉज यू कैन रिसीव द सेम प्रिविलेज फ्रॉम टू यूजर्स। तो एक ने वापस ले ली तो ऐसा नहीं है कि वो प्रिविलेज को कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट मी रिपीट अगेन, कि एक यूज़र को अगर दो अलग यूजर से प्रिविलेज मिली हुई है, सेम प्रिविलेज इंस्ट्रक्टर टेबल पर लेट्स से डिलीशन की प्रिविलेज है, और एक यूज़र ने वापस ले ली है, अभी दूसरे ने नहीं ली है, तो जिस यूज़र को प्रिविलेज दी है ना, मिली है, वो पूरी तरह नहीं जाएगी, क्योंकि आपके पास स्टिल एक दूसरे यूज़र से जो मिली हुई डिलीट प्रिविलेज है वो अवेलेबल है। तो आप इंस्ट्रक्टर टेबल में डिलीशन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर आपको किसी पर्सन से पूरी तरह से प्रिविलेज वापस लेनी है तो सारे यूजर अकाउंट के थ्रू से रिवोक करना पड़ेगा। ओके, सो दीज आर द लिस्ट ऑफ प्रिविलेजेस। आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू विद दीज प्रिविलेजेस। नाउ there is a concept of roles in our database. So what is the meaning of role? So role का जो concept है that have come from the concept of organization's hierarchy. You know that in any organization you have a set of employees, then those employees are assigned certain roles, okay. So the concept of role was introduced to assign the privilege in a proper way actually. Why it is required? क्योंकि अभी तक आपने देखा, जब हमने जो प्रिविलेज के ऑप्शंस देखे तो आपको यूजर्स को एक्सप्लिसिटली अलग अलग प्रिविलेज देना पड़ेंगे। सो फॉर एग्जांपल सपोज आपकी यूनिवर्सिटी में लेट्स से एकेडमिक सेक्शन में 10 क्लर्क्स हैं, सो दे आर हैविंग सेम डेजिग्नेशन, सो दे विल हैव सेम प्रिविलेज, उनको सेम पावर मिलना चाहिए ना। और you are having let's say 4 assistant registrars in your university. So all the 4 assistant registrar, if they are dedicated to the same department, let's say they are handling academic, so all 4 should have same power, है ना। और you have hundreds of instructors in university, so all instructors should have same privileges, yes or no? दे शुड हैव सेम पावर। ऐसा तो नहीं है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर को आप ज़्यादा पावर दे देंगे, दूसरे को कम दे देंगे, बिकॉज यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज दे हैव सेम रोल। सो एनी ऑर्गेनाइजेशन हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ रोल, यस। नाउ अगर हम ये रोल की अभी हम जो डिस्कस करने वाले इसकी बात ना करें, तो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है अभी हमने जो डिस्कस किया उसके थ्रू हमें यूजर को पावर्स कुछ असाइन करने हो तो आपको एक एक करके लिस्ट करना पड़ेगा उनको, और एक यूजर को जो पावर दे दिया वही अब आपको दूसरे यूजर को भी पावर देना है, लेकिन आपको उनको सेपरेटली फिर से एक लॉट ऑफ कमांड्स रिपीट करना पड़ेंगे, है ना।
So this problem, this makes your access control problem unmanageable and difficult to manage actually. Okay, so that's why the concept of role was brought. So the concept of role makes our task easy. So what you can do now, we can create roles. लाइक एक सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उसमें आपके पास ऐप डेवलपर होंगे, यू हैव टेस्टिंग इंजीनियर्स, यू हैव डेटाबेस डिजाइनर, सिस्टम डिजाइनर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और वेरियस काइंड ऑफ रोल्स आते हैं एंड हर रोल के पास सेम पावर्स होते हैं. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन वंस क्रिएट ए रोल, एक बार एक रोल क्रिएट कर लीजिए और जिसको जो प्रिविलेज देनी है वो असाइन कर दीजिए, जैसे प्रीवियस कमांड्स के थ्रू. एक बार आपने वो रोल क्रिएट कर लिया, अब आप क्या कर सकते हैं, वो रोल किसी भी यूजर को असाइन कर सकते हैं. सो लेट्स से आपके डिपार्टमेंट में 100, आपकी यूनिवर्सिटी में 100 इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो आपने एक इंस्ट्रक्टर एक रोल क्रिएट कर लिया और उस रोल में उस रोल को वो असाइन कर दिए पावर्स, जो इंस्ट्रक्टर्स को आपको पावर देने हैं कि इंस्ट्रक्टर क्या क्या कर सकता है. ओके, डेटाबेस में ग्रेडिंग से रिलेटेड, ऑल दैट रिसर्च से रिलेटेड जो मॉडिफिकेशन जो कुछ वो कर सकते हैं. सो आपने इंस्ट्रक्टर को असाइन कर दिया. नाउ अब आपका काम आसान हो जाएगा. एनी टाइम कोई भी एक इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करता है, आप सिर्फ इस इंस्ट्रक्टर उस पर्सन को एक यूजर नेम दे देंगे और उस यूजर नेम को जो रोल असाइन करेंगे वो इंस्ट्रक्टर का रोल असाइन कर देंगे. ठीक है, एंड अगर आपको वो पर्सन जो ना छोड़ के चला जाता है तो आप रोल वापस ले लेंगे. या कोई पर्सन प्रमोट हो जाता है, लेट्स से एक क्लर्क है, वो LDC था, नाउ इट हैव बिकम लेट्स से सेक्शन ऑफिसर, तो आप LDC का रोल उससे वापस ले लेंगे और नया रोल सेक्शन ऑफिसर का असाइन कर देंगे. तो इस तरीके से अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड रोल्स हैं तो रोल्स को आपने ऑलरेडी प्रिविलेज असाइन कर रखी है, तो नाउ इट विल बिकम वेरी ईजी टू असाइन रोल. इसका एक और फायदा होता है, समटाइम्स क्या होता है, कई बार एक पर्सन लीव कर जाता है तो दूसरे पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज एक पर्सन में आपकी यूनिवर्सिटी में एक रजिस्ट्रार हैव लेफ्ट हिज और हर जॉब, देन आप दूसरे पर्सन को वो रजिस्ट्रार का प्रिविलेज देना चाहते हैं, जो कि एक लेट से सम सीनियर मोस्ट फैकल्टीज देयर, आपने उससे रजिस्ट्रार का रोल असाइन कर दिया. तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जस्ट उस पर्सन को एक रोल असाइन कर देना पड़ेगा रजिस्ट्रार का, एंड देन ही विल बी एबल टू फंक्शन एज ए रजिस्ट्रार. सो इस तरीके से रोल्स को असाइन करना बहुत रोल से जो ना आपके प्रिविलेज का मैनेजमेंट काफ़ी आसान हो जाता है. ओके, सो यू कैन सी दैट व्हाट इज अ रोल. रोल इज डिफाइंड एज ए नेम्ड कलेक्शन ऑफ प्रिविलेज. सो प्रिविलेज का आपने कलेक्शन बनाया और उसको एक रोल दे दिया. ठीक है, सो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो रोल होंगे पर्सन्स के, उनको क्या क्या प्रिविलेज रिक्वायर्ड है उनका एक कलेक्शन बना लिया एंड यू डिफाइन ए रोल. ठीक है, सो रोल क्रिएट करने के लिए यू विल यूज ए क्रिएट रोल कमांड. रोल को ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप रोल कमांड. सो क्रिएट सिमिलरली रोल से प्रिविलेज असाइन करने के लिए ग्रांट कमांड यूज आप कर सकते हैं. रिवोक करने के लिए रिवोक कमांड यूज कर सकते हैं. उसे क्या क्या ग्रांट्स मिली हुई हैं, 100 ग्रांट फॉर लेट्स से अभी हमने देखा ना 100 ग्रांट्स फॉर रवि. सो किसी रोल का जो भी नाम है 100 ग्रांट्स फॉर इंस्ट्रक्टर यू कैन राइट, लाइक से इंस्ट्रक्टर नाम से रोल है, या आप किसी पर्सन के लिए डिफ़ॉल्ट रोल इस कमांड से इशू कर सकते हैं. सो लेट मी टेल यू हाउ यू क्रिएट ए रोल. ठीक है, सो लेट सपोज आपके एक सॉफ्टवेयर कंपनी के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आप चाहते हैं कि हम कुछ रोल्स क्रिएट करें, लाइक ऐप डेवलपर, ऐप डिजाइनर एंड ऐप टेस्टर. ठीक है, सो यू विल इशू दिस कमांड क्रिएट रोल. लेट मी शो यू दिस फॉर यू. ठीक है, सो द 3 roles have been created. So if you want to see the list of the users, आप यूजर्स की लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यूजर. ठीक है, ये रोल आपके यहाँ दिखाई देने लग जाएंगे, ऐप डेवलपर, ऐप डिजाइनर, ये स्मॉल डेवलपर. ठीक है, ये अलग है. सो नाउ यू कैन सी दैट दीज रोल्स आर बीइंग रिफ्लेक्टेड एज द यूजर इटसेल्फ इन द टेबल. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट रोल्स. सो जैसे ड्रॉप यूजर को डिलीट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, वैसे ही आप ड्रॉप रोल को भी डिलीट कर सकते हैं और जिस तरीके से यूजर को प्रिविलेज असाइन करते हैं वो कर सकते हैं. सो अब आप जैसे कोई रोल बनाते हैं, वो ऐप डेवलपर को जो प्रिविलेज देनी है वो पहले ऐप डेवलपर को प्रिविलेज दे दीजिए. ग्रांट ऑल ऑन ऐप अंडर, लेट से ऐप डेवलपर से रिलेटेड कोई आपका डेटाबेस है, app_db.star. सो एक डेटाबेस है जिस पर आपके जितनी भी टेबल्स हैं सब पर परमिशन देना चाहते हैं कि ये तो आपने लिखा टू ऐप डेवलपर. ठीक है, so now your app developer, this role will get all the privileges on this database. ठीक है, अगर आप किसी टेबल पर प्रिविलेज देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं. ओके,
सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जैसे आप नॉर्मल यूजर को प्रिविलेज देते हैं, रोल को भी प्रिविलेज दे सकते हैं। तो आप एक रोल को एक स्पेसिफिक प्रिविलेज दे दीजिए, है ना। सो जैसे एक दूसरे एग्जांपल में हमने ये जो रोल है ऐप डिजाइनर, इसको इस डेटाबेस पर केवल सेलेक्ट की प्रिविलेज दी है। सिमिलरली जो ऐप टेस्टर है, इसको हमने ऐप, ये मेरे पास डेटाबेस है लेट्स से app_db, और इस पर मुझे इस पर्सन को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की प्रिविलेज देनी है। सो दैट मीन्स इसमें जितनी भी टेबल्स हैं ये यूजर उसमें इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन सब कर पाएगा। सो ऑल द रोल्स, द प्रिविलेज विल बी गिवन टू दैट। नाउ अब आपका काम आसान हो जाएगा। आपने रोल्स क्रिएट कर लिए और रोल्स के पास ऑलरेडी प्रिविलेजेस हैं। दैट मीन्स जो उनको फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए वो प्रिविलेज आपने उनको दे दी है ऑलरेडी। अब सिंपली क्या होगा, अब आपके पास कोई एक यूज़र आता है और आप चाहते हैं, आपने उसे अपॉइंट किया है एज ए ऐप डेवलपर, तो आप उसे केवल ऐप डेवलपर का रोल असाइन कर देंगे। ठीक है, एक पर्सन आपकी कंपनी में ज्वाइन करता है एज ए ऐप डिजाइनर, तो आप उसे ऐप डिजाइनर का रोल असाइन कर देंगे, तो सारे ऐप डिजाइनर्स के पास सेम प्रिविलेज होगी। ऐप टेस्टर आता है कोई आपके पास, तो आपने उसे ऐप टेस्टर का रोल असाइन कर दिया। ओके, सो इस तरीके से आप रोल क्रिएट करेंगे, पहले उनको प्रिविलेज असाइन करेंगे दूसरा राउंड में, एंड देन अब आपको उनको सिर्फ रोल असाइन करना है। सो रोल करने, असाइन करने का तरीका क्या है, दिस कमांड विल शो यू। सो सपोज दैट आपके पास 3 यूजर आते हैं, अमित, जय एंड रवि, एंड आप चाहते हैं अमित को जो है ऐप डिजाइन डेवलपर का रोल आपको देना है, तो आपने लिखा ग्रांट ऐप डेवलपर, ठीक है, टू दिस पर्सन। लोकल होस्ट ऑप्शनल है, लोकल मशीन पर आप कर रहे हैं, तो अगर किसी और रिमोट मशीन पर आपका डेटाबेस है तो आपको वहाँ इसका ऐड के बाद आईपी एड्रेस देना पड़ेगा या होस्ट नेम देना पड़ेगा। ग्रांट ऐप डिजाइनर टू जय, जैसे हमने जय को ऐप डिजाइनर का रोल असाइन कर दिया। सो अब आप देख रहे हैं मुझे प्रिविलेज असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऐप डिजाइनर रोल को जो प्रिविलेज दी थी ना, ये वाली प्रिविलेज आपने ऐप डिजाइनर को जो दी थी, ये सारी प्रिविलेज अपने आप इसे मिल गई। सिमिलरली अगर आप अमित को मल्टीपल रोल असाइन करना चाहते हैं, लेट्स से अमित जो है ना एज ए ऐप डिजाइनर, ऐप डेवलपर था, आप उसे ऐप डिजाइनर और टेस्टर का भी रोल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। सो नाउ अमित के पास तीनों रोल हो गए हैं, ग्रांट ऐप डिजाइनर, ऐप टेस्टर टू अमित। सो अब ये अमित जो ना तीनों रोल असाइन हो गए। सो एक पर्सन को आप मल्टीपल रोल भी असाइन कर सकते हैं। सो नाउ रोल से क्या हो रहा है, आपका प्रिविलेज देना और वापस लेना आसान हो जाता है। अब वापस लेना है तो अच्छा, ये तो आपको प्रिविलेज देखना है, उसके लिए सो ग्रांट्स फॉर अमित, नॉर्मल यूजर की तरह जैसे मैंने अभी बताया था। ठीक है, ये तो देखने क्या प्रिविलेज है वो देखने के लिए सो ग्रांट्स फॉर अमित यूजिंग ऐप डिजाइनर। तो ऐप डिजाइनर के तौर पर अमित को क्या क्या प्रिविलेज मिली हुई है वो आप देखना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस कमांड, सो ग्रांट्स फॉर अमित यूजिंग ऐप डिजाइनर। तो आपका रोल बता दीजिए, उस रोल के अगेंस्ट में जो प्रिविलेज है वो मिल जाएंगे। नाउ अब सिंपल आता है कि रोल को रिवोक कैसे करना है। सो आई हैव नॉट एडेड द स्लाइड देयर। सो रोल को रिवोक करने के लिए आपको अगेन, जैसे रिवोक से आप प्रिविलेज वापस लेते हैं, ऐसा ही आपको रोल वापस ले लेना है। आप लिखेंगे रिवोक, एक मिनट, लेट मी कंफर्म। सो ये तो आपका है सेलेक्ट करंट रोल, आपको पता करना है। ये आप इस कमांड से पता कर सकते हैं कि अभी जो यूज़र लॉगिन है उसका क्या रोल है। ठीक है, ठीक है, कोई रोल असाइन ही नहीं किया है इसलिए देयर इज़ नो रोल। तो अगर आपको किसी पर्सन का जो करंट यूज़र है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, यू कैन नो दैट। अच्छा, रिवोक के लिए, रोल रिवोक के लिए आई हैव नॉट एडेड एनी स्लाइड देयर। सो लेट मी चेक what is the exact syntax. It is not be a good idea to depend on the memory. ठीक है, मेरे मेमोरी में हो सकता है I will may be wrong, so let me confirm. Revoke role. Revoke command is used for revoking the role. Revoking role from a user plus MySQL.
अच्छा, रोल को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, आपको रोल को ख़त्म ही करना है कम्प्लीटली, तो आप ये भी जैसे यूज़र को ड्रॉप करते हैं ड्रॉप यूज़र कमांड से, यू कैन ऑल्सो ड्रॉप रोल ऑल्सो। ओके, सो जनरली हम रोल को डिलीट नहीं करते हैं, बट समटाइम्स यू वांट टू रिमूव ए पर्टिकुलर रोल, यू कैन remove that role easily. So user role is actually can be treated as a user itself. Sorry. Okay, revoke. एक मिनट, one minute, let me check. So for example you have a user रवि एंड आपने उसे इंस्ट्रक्टर का रोल असाइन किया है, ठीक है, हालांकि ऐसे मैंने नहीं किया है, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कैसे होगा। रिवोक रोल, रोल नेम एक्चुअली इंस्ट्रक्टर फ्रॉम रवि। यार ये वाई नॉट आएगा। ठीक है, सो ये आपको रोल का नाम लिखना है जिस रोल को वापस लेना है, ठीक है। सो रवि के पास कई सारे रोल हो सकते हैं, लेट्स से रवि इज हैविंग रोल ऑफ, लेट्स से इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी इट मे बी प्लेइंग द रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड इट मे बी ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सो HOD मे बी ऑल्सो ए रोल। सो अगर आपने कोई भी एक रोल वापस लेना है तो आप एक रोल वापस ले सकते हैं। हालांकि अगर लॉजिकली देखें तो इंस्ट्रक्टर का रोल अगर वापस ले रहे हैं तो वो रवि फिर यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं रहेगा, तो फिर बाकी के और जो रोल हैं वो सब रिवोक होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि रोल रिवोक करने के तरीके में कमांड इशू करते समय यूनिवर्सिटी में जो हायरार्की है उसको ध्यान रखना है। सो अगर आप इंस्ट्रक्टर का रोल रिवोक कर रहे हैं दैट मीन्स रवि इज नाउ विल नॉट बी नो मोर एन इंस्ट्रक्टर इन टू द इंस्टीट्यूट, ठीक है। जैसे रवि अगर छोड़ के जा रहे हैं इंस्टीट्यूट को तो रिवोक कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए आप इंस्ट्रक्टर के तौर पर वो छोड़ के नहीं जा रहा है बट ही इज़ नाउ नॉट वर्किंग एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, देन आप उससे लेट्स से आपने हेड का रोल दे रखा था या डीन का भी रोल दे रखा था, तो वो रोल आपको वापस लेना है, तो आप ये कमांड लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपको रिवोक कीवर्ड लिखना है, सो दैट यू वांट टू रिवोक द रोल, देन नेम ऑफ द रोल्स, ठीक है, जो आपने पहले से क्रिएट किए हुए हैं और रवि को असाइन किए हुए हैं वो आप दे देंगे फ्रॉम एंड रवि और सेमीकोलन, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेटेड सिंटेक्स नहीं है। सो इस तरीके से आप किसी पर्सन से रोल वापस भी ले सकते हैं। सो रोल का जो कॉन्सेप्ट है आपका दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मेक्स योर टास्क ईजी। तो प्रिविलेज का जो असाइनमेंट है, रिमूवल है, ये सब काफ़ी आसान बना सकता है। सिमिलरली अगर आपको मान लीजिए किसी रोल में आपने कोई मॉडिफिकेशन कर दिया तो वो मॉडिफिकेशन ऑटोमेटिकली अपने आप सब पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल सपोज आपने एक हेड को कुछ एडिशनल पावर दे दिया सारे हेड्स को यूनिवर्सिटी ने, तो वो चूँकि आपने हेड का रोल कुछ सेट ऑफ पर्सनस को असाइन कर रखा है तो आसानी से आप जो ना उसमें केवल हेड के रोल को नई प्रिविलेज ऐड कर देते, तो बाकी सबको अपने आप वो प्रिविलेज अपने आप मिल जाएगी, आपको अलग अलग सबको प्रिविलेज देने की ज़रूरत नहीं है। Okay.